اب تقریری مقابلہ شروع ہونے لگا ہے، لیکن بیت بازی کرنے والے بچے چلے گئے اور تقریر کرنے والے نئے بچے آئیں گے، لیکن ہمارے جو ججز ہیں وہ الحمدللہ وہی ہیں، کیونکہ بہترین آپ انصاف کرتے ہیں۔ جناب سید فیصل کریم صاحب اس سیگمنٹ میں پھر ایک بار خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور دوسرے جج ہمارے ہدایت ساحر صاحب آپ کو اس سیگمنٹ میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور انم تنویر آپ کو ایک بار ہم پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ انم، یہ سیگمنٹ ہے تقریری مقابلے کا، جیسے پچھلا بیت بازی کا تھا، اسی طرح 3 مقررین آئیں گے اور تقریر کریں گے۔ چلیے جناب، میں اپنی ٹیم کا تعارف کراتا چلوں۔ پہلے مقرر ہمارے پاس جو تقریر کے لیے تشریف لائیں گے وہ ہیں شاہزیب شیخ، جو کہ جی سی یونیورسٹی حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں۔ آئیے، بسم اللہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں شاہزیب صاحب؟ حیدرآباد سے 2 گھنٹے کا سفر کیسا رہا؟ بہترین گزرا۔ آپ کے لیے دعا ہے اور باقی تینوں مقررین کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ کو کامیاب کرے، لیکن اگر آپ جب فائنل میں پہنچیں گے تو خوشخبری ابھی سے لے لیجئے کہ مرحبا گلبہار کی جانب سے آپ کو دی جائے گی، فائنل میں جو تقریری مقابلے کے فائنلسٹ ہوں گے ان کو مرحبا گلبہار کی جانب سے دی جائے گی ایک خوبصورت سی بائک۔ مرحبا گلبہار، جہاں پیار وہاں مرحبا گلبہار، پھلوں پھولوں اور خالص جڑی بوٹیوں کے حرکیات سے تیار کردہ مرحبا گلبہار، جن کی بائک آپ کے ساتھ جائے گی، اور اس تقریری مقابلے کے فائنلسٹ کو ملے گی طفل، فائنلسٹ کے جو رنر اپ ہوں گے، جو فائنل میں رنر اپ ہوں گے، ان کو دی جائے گی طفل بیبی ڈائپرز کی جانب سے خوبصورت سی LED۔ طفل ڈائپرز پاکستان کی پہلی ISO 9001 سرٹیفائڈ ڈائپرز بنانے والی کمپنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس ڈیبیٹ کمپٹیشن کے فائنل میں رنر اپ ہوں گے ان کو نیلسن پینٹ کی جانب سے دی جائے گی ایک واشنگ مشین، کیونکہ نیلسن والے کہتے ہیں رنگ زندگی ہے، اور نیلسن پینٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ 25% ایکسٹرا کوریج دیتا ہے تاکہ آپ کم پینٹ میں زیادہ پینٹ کر سکیں۔ اور آج کے جو رنر اپ ہوں گے ان کو دیے جائیں گے WB بائی ہمانی کی جانب سے گفٹ ہیمپر، اور ہربیونز کی جانب سے گفٹ ہیمپر۔ ہربیونز جو کہ پاکستان کی نیچرل پروڈکٹس بنانے والی کمپنی ہے، ان کی جانب سے گفٹ ہیمپر جائیں گے۔ اور ہمانی کے بارے میں بتاتے چلوں، ہمانی WB بائی ہمانی کے بارے میں اگر اسکن کیئر کی بات کی جائے یا ہیئر کیئر کی بات کی جائے یا پھر نیچرل پروڈکٹس کی بات کی جائے تو ہمانی کا نام سامنے آتا ہے، اور پاکستان میں 50 سے زیادہ ان کے آؤٹ لیٹ ہیں، اور آپ ان کی ویب سائٹ سے بھی ان کے پروڈکٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ چلیے اب ہم چلتے ہیں تقریر کی طرف۔ تو شاہزیب صاحب، آپ کا موضوع ہے، آپ کا بھی اور تینوں مقررین کا موضوع یہی ہے، نفرتوں کے دور میں انسانیت زندہ تو ہے۔ 2 منٹ آپ کو دیے جائیں گے، 2 منٹ میں بزر بجائی جائے گی، اور 30 سیکنڈ آپ کو تقریر مکمل کرنے کے لیے دیے جائیں گے۔ تو جی، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اب ججز کی اجازت لیجیے اور شروع کیجیے۔ یہ دنیا ازل سے شروع اور تاریکی کی کشمکش کے میدان رہی ہے صدر علی وقار۔ میں چشم تصور سے ایک ایسے دور کا منظر دیکھتا ہوں کہ جہاں نفرت، تعصب اور خود غرضی کی آہدیاں چل رہی ہے، مگر دوسری جانب انسانیت کی شمع ابھی بھی روشن ہے۔ ایک جانب نفرت کے سائے گہرے ہو چکے ہیں، مگر دوسری جانب محبت، ہمدردی اور اخلاص کی روشنی انہیں مات دینے کے لیے کافی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب ظلم و ستم کے طوفان آئے مگر انسانیت کی روشنی انہیں مات دینے سے کافی رہی، اور آج بھی کسی مظلوم کی حمایت، کسی بے سہارا کی مدد اور کسی دکھی دل کے زخموں پر مرہم رکھنے والے موجود ہیں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نفرتوں کے دلوں میں بھی، نفرتوں کے دور میں بھی انسانیت زندہ ہے۔ صدر علی وقار، محبت اور ہمدردی یہ سب سے بڑی یہ محبت اور ہمدردی سب سے بڑی تلوار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں انقلاب لانے والے مفکرین نے ایسے بنیاد بنا کر ذلت سے رسوائی اور انسانیت کی بحالی کے لیے بیڑا اٹھایا۔ برطانیہ کے سیاستدان ولیم ویلبرفورس نے 1807 کے اندر غلامی کے خلاف غلامی تجارت کے خلاف ایک مہم چلا کر اس کے خلاف اختتام کی پذیرائی کرنے کی کوشش کی۔ سیاہ فام افراد کے حقوق کے لڑنے والے نیلسن منڈیلا کے حقوق کی جانب سیاہ فام افراد کے حقوق کے لڑنے والے مارٹن لوتھر کنگ نے امن اور استحکام جنوبی افریقہ سے تعلق رکھنے والی نیلسن منڈیلا نے جسے نسل پرستی کے خلاف 27 سال جیل میں گزارنے کے باوجود بھی اور اپنے مخالفین کو معاف کر کے ایک اظہار محبت
पैगाम दिया। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली मलाला यूसुफ़ज़ई के जिसने पाकिस्तान की बेटियों की आवाज़ बनी, एतजाज़ हसन के जिसने एतजाज़ हसन के जिसने अपनी ज़िंदगी कुर्बान करके एक ज़िंदगी कुर्बान करने के बावजूद भी एक लाखों ज़िंदगी महफूज की, एतजाज़ सदर अली वकार ईदी फाउंडेशन की बुनियाद रखने वाले अब्दुल सत्तार ईदी जिसने यतीमों का सहारा बना, डूबतों का किनारा बना। टाइम अप हो गया आपका, टाइम अप हो गया। माशाल्लाह बेहतरीन कोशिश थी। शाहजेब शेख साहब थे जीसी यूनिवर्सिटी हैदराबाद से। अब मैं दूसरे मुकर्रिर तलहा लतीफ़ साहब को दावत दूंगा जो NED यूनिवर्सिटी कराची से तशरीफ़ लाएँ। आइए बिस्मिल्लाह, माइक ऑन कर लीजिए प्लीज़। जी तलहा, आपका मौजू भी यही है, आपका टाइम शुरू होता है, जजेस की इजाज़त के साथ शुरू कीजिए। इजाज़त। ये ज़मीन सिसक रही है, हवाएं जहर आलूद हो चुकी हैं कि नफ़रतों के बोझ तले दबे ये दरो दीवार गवाह हैं कि इंसान अब सिर्फ ज़िंदा है मगर ज़िंदगी की हरारत से महरूम है, कि नफ़रतों के सौदागर मंडियों में बैठे इंसानियत को नीलाम कर रहे हैं, कोई रंग के नाम पर, कोई नस्ल के नाम पर, तो कोई सरहद के नाम पर। लेकिन जनाबे वाला, नफ़रत की आंधी चाहे कितनी ही तेज़ क्यों ना हो, इंसानियत का दिया कहीं ना कहीं जलता ज़रूर रहता है और बताता रहता है कि नफ़रतों के इस दौर में भी इंसानियत अभी जिंदा है। कि हम मौजूद हैं 1947 में कि जहां हिजरत करने वाले मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, तो दूसरी जानिब चंद सिख और हिंदू ऐसे भी हैं कि जो अपने मुसलमान साथियों को बाहिफाजत सरहद पार करवा कर बताते हैं कि इंसानियत अभी जिंदा है। हम मौजूद हैं 1994 में जहां रवांडा में एक जानिब खून की होली खेली जा रही है, तो दूसरी जानिब पॉल रोसेसा बंगिया जैसे अफराद दर्जनों जाने बचाकर बताते हैं कि इंसानियत अभी जिंदा है। हम मौजूद हैं उस दुनिया में कि जहां मुसलमानों को दहशतगर्द समझा जाता है, वहीं सानिया क्राइस्ट चर्च के बाद न्यूजीलैंड की गैर मुस्लिम वजीर आजम भी मुसलमानों के साथ खड़े होकर बताती है कि इंसानियत अभी मरी नहीं है। हम मौजूद हैं उस दौर में कि जहां मुसलमानों पर फलस्तीन में खून की होली खेली जाती है, तो दूसरी जानिब चंद इसराइली बाशिंदे ऐसे भी हैं कि जो इस नस्ल कुशी के खिलाफ आवाज बुलंद करके बताते हैं कि इंसानियत अभी मरी नहीं है। हम मौजूद हैं इस दौर में कि जहां बूढ़े वालिदैन को घर से निकाल दिया जाता है, तो हम ओल्ड एज होम बनाकर इन बुजुर्गों को संभाल कर बताते हैं कि नफरतों का दौर अपनी जगह मगर इंसानियत भी अपनी जगह मौजूद है। हम मौजूद हैं उस दौर में कि जहां भाई भाई के लिए आवाज बुलंद करने को तैयार नहीं, वहीं मजलूमों की आवाज बनने वाला ये मीडिया कभी सिंध में अपाहिज की गई ऊँटनी की आवाज बुलंद करता है, तो कभी कराची में डंपरों तले रौंदे जाने वाले माओ के लखते जिगरों के लिए और बताता है कि नफरतों के इस दौर में इंसानियत जिंदा है। कि जनाबे वाला, नफरतों के इस दौर में इंसानियत का खमीर जिंदा तो है, सही मगर साथ जरूर ले रहा है, और नफरत के ठेकेदारों को ललकार कर कहता है कि इस चमन को कभी सहरा नहीं होने दूंगा, मर मिटूंगा, कभी ऐसा नहीं होने दूंगा, दफन हो जाएगा खुद रात की तारीकी में, जो ये कहता है सवेरा नहीं होने दूंगा, जो ये कहता है सवेरा नहीं होने दूंगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये थे तलहा लतीफ़ साहब जो NED यूनिवर्सिटी से तशरीफ़ लाए थे। अगले मुकर्रिर को मैं दावत दूंगा हसनैन अली साहब जो कि GC यूनिवर्सिटी हैदराबाद से तशरीफ़ लाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सफ़र खैरियत से गुजरा आपका? चलिए, आपका भी मौजू यही है, नफ़रतों के दौर में इंसानियत जिंदा तो है। आपका वक्त शुरू होता है, अब जजेस की इजाज़त के साथ शुरू कीजिए। इजाज़त है? बिस्मिल्लाह। जब काबिल ने आबील का कत्ल किया तो बस तभी से मोहब्बत के काबिल नफरत आ खड़ी हुई मेहरबाने हाज़रीन महफिल कोई बात नहीं, कोई बात हाज़रीन महफिल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दोबारा शुरू कर दीजिए, कोई बात नहीं, आपका टाइम वरना ज़ाया होगा। जब काबिल ने आबील का कत्ल किया, बस तभी से मोहब्बत के काबिल सांस लीजिए। मोहब्बत के काबिल हाबिल नहीं रहा। जी, आपके पास 1.5 मिनट है, आप अपनी तकरीर मुकम्मल करें, ठीक है? बिस्मिल्लाह। जब काबिल ने आबील का कत्ल किया, बस तब ही से मोहब्बत के काबिल ने आबील का, आप मजीद करना चाहते हैं? एक गहरा सांस लीजिए आप।
आंखें ठीक बंद है? कीजिए, गहरा सांस गहरा लीजिए। सांस लीजिए पेट से, ठीक है? पेट से सांस लेना आता है? रिलैक्स होके बिल्कुल हो जाता है, ऐसा कोई मसला नहीं। नो चले आप कोई गिव बात अप कर रहे हैं, चले कोई कोई बात बात नहीं। कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। Good ज़्यादा गलती करने से बेहतर है कि इंसान गिव अप कर ले, और इंशाल्लाह अगली बार आप तैयारी करके आइएगा, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। आप तीनों साहिबान तशरीफ़ ले आइए, शाहज़ेब साहब, शाहज़ेब शेख आप भी आ जाइए, तलहा लतीफ़ आप भी आ जाइए, और हसनैन अली साहब आप भी तशरीफ़ ले आइए ताकि हम जजेस से फ़ैसला ले सकें। जी अनम, कैसे लगा आपको? बहुत ज़बरदस्त। कुछ कहना चाहेंगी आप इनके बारे में? इतनी जो इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स के पास है, तो दिस इज़ अमेजिंग, बिकॉज आजकल हम देखते हैं हमारी यूथ के पास इतनी इन्फॉर्मेशन कम ही होती है, मतलब कि मतलब आपको अच्छा लगा? रवांडा, नेल्सन बस मंडेला, आपका ये बैठना वो। इनके लिए हौसला अफजाई है। नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा किया तीनों ने। विनर तो बहुत ऑब्वियस है, ठीक है, और मुझे खुशी इस बात की है कि एक ऐसा कंटेंट बोला गया है जो कि आम लोगों से बर्दाश्त नहीं होता है, और आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो इस शमा को इसी तरह जलाते रहें, बहुत खुशी की बात है। और होता क्या है फरहान भाई कि पाकिस्तान एक गुलदस्ता है, इसमें मुस्लिम, हिंदू कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, पारसी, बहुत सारे इस तरह हमारे गुलदस्ते हैं, खूबसूरत हारमोनी खूबसूरत, बिल्कुल। और हमारी एक तारीख़ है हम आहंगी की, और उस हम आहंगी को आपको सिर्फ मैं विक्टोरियस इसलिए आज बना रहा हूँ क्योंकि आपने उस हम आहंगी को इतने खूबसूरती से बयान किया है, तारीख़ से लेके आज तक। तो बहुत शुक्रिया आपका। जब बच्चे स्कूल में जाते हैं और वो जब बात कहते हैं ना कि किसी कौमियत से लफ्ज़ जोड़ के गासिब गासिब कहते हैं, तो मुझे तकलीफ़ होती है, क्योंकि हम आज हमारी अफवाज पाकिस्तान से लेके पुलिस, पुलिस से लेके डॉक्टर्स, डॉक्टर से लेके हर शोबे में तमाम तर जितने भी हमारी बरादरियां हैं वो सब इक्वली पार्टिसिपेट कर रही हैं। मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है। तो भाई आज के जो विनर है ना वो तलहा हैं, बाय ह्यूज मार्जिन। तलहा आपको बहुत बहुत मुबारक हो, तलहा लतीफ़। हिदायत साहब, आप भी मुत्तफ़िक़ हैं इस फैसले से? बिल्कुल फैसले से मुत्तफ़िक हूँ, और ये कहूँगा कि मेहनत करें, कोशिश करें। बार बार फैसल भाई एक बात कहते हैं कि भाई सदर कोई नहीं है यहाँ पे, तो सदर को मुखातिब ना कीजिए, हाज़रीन कह दीजिए। और अल्फाज का तो खैर मामला है, वो चूँकि ज़बान का मामला है, उसमें कहीं आ जाते हैं, जिसे गैन को गाफ पढ़ना और खे को खे पढ़ना, ये मामला थे, वो तलफ़्फ़ुज़ में भी बेहतरी लाने की ज़रूरत है। चलिए, आज के जो फाते हैं वो हैं तलहा लतीफ़, जो कि NED यूनिवर्सिटी से कराची से तशरीफ़ लाए। बहुत सारी तालियां तलहा के लिए होनी चाहिए, माशाल्लाह। शाहज़ेब शेख साहब ने भी बड़ी अच्छी मेहनत की, और हसनैन साहब आपने ज़ाहिर तकरीर याद नहीं हो लेकिन आपने गिव अप कर लिया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बजाय इसके कि आप गलत करते, आपने बेहतर किया कि उसको स्टॉप कर लिया। तो शाहज़ेब शेख के लिए और हसनैन अली के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। तलहा लतीफ़ साहब, आप तो जा रहे हैं फाइनल की तरफ। शाहज़ेब शेख साहब और हसनैन अली साहब आपको हरब्यून्स की जानिब से जाएंगे गिफ्ट हैम्पर, और WB मेहमानी की जानिब से जाएंगे गिफ्ट हैम्पर। और